again you will need help in that area. ठीक है, तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसके अंदर ये सारे कंपोनेंट्स आ जाते हैं. ठीक है, इट इज नॉट ओनली योर कंप्यूटर हार्डवेयर बट इट रिक्वायर्स सॉफ्टवेयर as well as services which include consulting, education and training as well. So IT infrastructure consists of a set of physical devices and software applications that are required to operate the entire enterprise. But IT infrastructure is also a set of firm-wide services budgeted by management एंड कंप्राइजिंग बोथ ह्यूमन एंड टेक्निकल कैपेबिलिटीज. ठीक है, तो जो मैंने आपको जैसे एग्जांपल दी कि सिर्फ आपके पास हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से होना जो है वो दैट इज नॉट इनफ टू रन एन इंफॉर्मेशन सिस्टम, रादर इट रिक्वायर्स बोथ ह्यूमन एंड टेक्निकल कैपेबिलिटीज. तो पूरा आपको उसके अंदर जो है वो इट इज अ कंप्लीट पैकेज. What all is included in the infrastructure of IT, or what are the different components of IT infrastructure. तो उसके अंदर ये जो है ना, these are the following things which are required. Number one, the first component of IT infrastructure is computing platform, used to provide computing services that connect employees, customers, and suppliers into a coherent digital environment, including large mainframes, mid-range computers, desktop and laptop computers, and mobile handheld devices. ठीक है, तो पहली चीज आपके पास कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म चाहिए आपको. विच कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म इज सुटेबल फॉर योर टाइप ऑफ बिजनेस. अगर आपका लार्ज स्केल बिजनेस है तो फिर आपको मेन फ्रेम चाहिए होगा या मिड रेंज कंप्यूटर्स चाहिए होंगे. और जो नॉर्मल बिजनेस हैं उसके अंदर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप कंप्यूटर्स कैन वर्क. और आजकल जिस तरह से वी आर नाउ इंक्रीजिंगली shifting towards mobile technology, so the mobile handheld devices that can also be used. So these are the first component of IT infrastructure is computing platform. The second is telecommunication services. ठीक है, सिर्फ आपके पास कंप्यूटर नहीं बल्कि आपको उसके लिए इंटरनेट की कनेक्शन चाहिए. सो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज दैट प्रोवाइड डाटा, वॉइस एंड वीडियो कनेक्टिविटी टू एम्प्लॉयज, कस्टमर्स एंड सप्लायर्स. तो ये आपका सेकंड रिक्वायरमेंट है फॉर आईटी. द थर्ड रिक्वायरमेंट इज डाटा मैनेजमेंट सर्विसेज. अब देखें जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका डाटा ग्रो करता चला जाता है एंड यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू मैनेज द डाटा योरसेल्फ, और तो उसके लिए फिर आपको डाटा मैनेजमेंट सर्विसेज रिक्वायर्ड होती हैं that store and manage corporate data and provide capabilities for analyzing the data. ठीक है, तो डाटा मैनेजमेंट सर्विसेज की ये दोनों एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है. वन इज द स्टोरेज ऑफ डाटा एंड द सेकंड इज to conduct different type of analysis on that data. तो उसके लिए this data management services that is used for this purpose. Okay, let's move on to the fourth component of IT infrastructure, application softwares. ठीक है, तो आपके पास different softwares available हैं which serve different purpose. For example, if you want to manage your supply chain, for that you can have supply chain management system. If you want to have if you want to maintain good relationship with the customers, or for that customer relationship management system softwares are available. Similarly, for knowledge management, we have knowledge management systems. So these are application softwares that are required for specific purpose, and each business can use them for their requirements as needed. The fifth component is physical facilities management services that develop and manage the physical installations required for computing, telecommunication, and data management service. ठीक है, तो wherever you are using an IT system or information technology, you need to जैसे आप देखेंगे आपके पास सर्वर रूम्स बने होते हैं. ठीक है, उसके लिए आपके पास हेल्प डेस्क बने होते हैं, और यू हैव सम सपोर्ट सेंटर फॉर द टेलीकम्युनिकेशन. जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उसके साथ आपकी जो है वो यू नीड उसकी जो है वो सर्विसेज आपको चाहिए. और अगर आप डाटा मैनेजमेंट सर्विस यूज कर रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं हाउस होना चाहिए. तो ये सारी फिजिकल फैसिलिटीज हैं जो इसके लिए आपको फिजिकल फैसिलिटीज मैनेजमेंट सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं. नेक्स्ट इज IT management services. IT management services plan and develop the infrastructure,
कोऑर्डिनेट विद द बिजनेस यूनिट्स फॉर आईटी सर्विसेज, ठीक है, जो आपके बिजनेस यूनिट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स लेकर उनको उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिजाइन करके देना इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेज अकाउंटिंग फॉर आईटी एक्सपेंडिचर, ठीक है जी, जितना भी आपका बजट है आईटी का उसको मैनेज करना। एंड प्रोवाइड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विसेज, तो ये आईटी की डिप्लॉयमेंट है, इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट, तो उस प्रोजेक्ट को किस तरह से मैनेज करना है, दो सर्विसेज आर आल्सो इंक्लूडेड इन आईटी मैनेजमेंट सर्विसेज। ठीक है, तो ये आईटी मैनेजमेंट सर्विस में आपके पास ये सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कोऑर्डिनेशन विद बिजनेस यूनिट्स, managing accounting for IT expenditure, and providing project management services. अच्छा जी, number 7 component is IT standard services that provide the firm and its business units with policies that determine which information technology will be used when and how. ठीक है, तो स्टैंडर्ड आर फॉलोड। अब आईटी के लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड्स आर देयर, और आप कोशिश करते हैं कि आपका जो बिजनेस में इंफॉर्मेशन सिस्टम्स जो आप इंस्टॉल कर रहे हैं, दे आर अकॉर्डिंग टू, दे मीट दैट आईटी स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो उसके लिए दी स्टैंडर्ड्स आर बेसिकली पॉलिसीज दैट डिटरमिन विच टेक्नोलॉजी विल बी यूज्ड व्हेन एंड हाउ। नेक्स्ट इज आईटी एजुकेशन सर्विस। ठीक है, तो अब आपके पास एक सॉफ्टवेयर आपने लिया है और यू वांट टू achieve different tasks, you want to perform different tasks using that information system. For that training is required। ठीक है, जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनको उस पर ट्रेन करना होगा, तो दैट इज द जॉब ऑफ द आईटी एजुकेशन सर्विस। सिमिलरली द मैनेजर्स नीड ट्रेनिंग in order to plan for and manage IT investments. So the training to both employees and managers is the service which is provided by IT education services. And the final component of IT infrastructure, the last component, is IT research and development, R&D. So IT research and development services that provide the firm with research on potential future IT projects and investments that could help the firm differentiate itself in the marketplace. अच्छा जी, ये जो आईटी इंडस्ट्री है ना, ये बड़ी डायनामिक इंडस्ट्री है, इसके अंदर बड़ी फास्ट पेस जो है चेंजेस आती हैं। तो आर एंड डी डिपार्टमेंट का काम है कि इसको इस पे नजर रखना कि जी क्या लेटेस्ट आ रहा है मार्केट के अंदर, कौन सी टेक्नोलॉजी लेटेस्ट आ रही है, और उसको हम किस तरीके से अपने बिजनेस बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं टू कीप द कॉम्पिटिटिव एज। तो ये सारा आईटी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज का काम है कि to keep an eye on the latest developments in the field of IT. So this is our first topic that we covered today, and that topic is basically what is IT infrastructure and what are the different components. तो हमने ये 9 components जो है IT infrastructure के इसमें cover किए हैं: computing platforms, telecommunication services, data management services, application software services, facilities management services, IT management services, IT standard services, IT education services, IT research and development services. ठीक है, तो this is the first part, or you can say one unit of the today's presentation that we covered. Let's have a break of 30 seconds and then we can start the new presentation. Okay, students. The second topic that we'll be covering today is eras of IT infrastructure. The IT infrastructure that we see today, it has a history of over 50 years. The IT infrastructure in organization today is an outgrowth of over 50 years of evolution in computing platforms,
There have been 5 stages in this evolution, each representing a different configuration of computing power and infrastructure elements. ठीक है, तो ये जो लास्ट 50 years की जो हमारी एवोल्यूशन है कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स की, उसको इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 eras. ठीक है, द फर्स्ट वन इज जनरल पर्पस मेन फ्रेम एंड मिनी कंप्यूटर कंप्यूटिंग. Second one is personal computers. Third is client server networks. Fourth is enterprise computing. Fifth is cloud and mobile computing. अच्छा जी, अब ये जो 5 eras हैं, हम इनको वन बाय वन सारों को डिस्कस करेंगे कि जी व्हाट वर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स of each of the 5 era. Main developments which were made in each of the era will be discussed one by one. So let's start with the general purpose mainframe and mini computing era. So this era basically started in 1959 with the introduction of IBM 1401 and 7090 transistorized machines, which were basically the beginning of widespread commercial use of mainframe computers. ठीक है, तो ये 1959 में जो IBM की जो ये दो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स थे, ये उनके मॉडल्स हैं, IBM 1401 एंड IBM 70901. ये दो कमर्शियल जो है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स थे जो IBM ने इंट्रोड्यूस करवाए, और वहां से ये मेन फ्रेम कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट जो है पॉपुलराइज होना शुरू हुआ. In 1965, you can say after 6 years, the mainframe computer truly came into its own with the introduction of IBM 360 series. The 360 was the first commercial computer with a powerful operating system that could provide time sharing, multitasking, and virtual memory in more advanced models. ठीक है, तो ये जो IBM 360 था, ये पहली दफा एक मेन फ्रेम कंप्यूटर मार्केट के अंदर आया जिसके अंदर ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसके अंदर ये कॉन्सेप्ट्स जो पहले नहीं पाए जाते थे, टाइम शेयरिंग का कॉन्सेप्ट आ गया कि अब आपके पास डिफरेंट डाटा सेंटर्स हैं, उनका आपने डाटा कंपाइल करना है या उसको एनालाइज करना है, तो उसके लिए आप मेन फ्रेम के ऊपर उसको टाइम शेयरिंग कर सकते हैं. मल्टीटास्किंग, डिफरेंट टास्क यू कैन परफॉर्म इन वन पॉइंट एट टाइम. और वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट आ गया कि जी आपके पास डिफरेंट इंस्टेंसेस क्रिएट हो गए फॉर डिफरेंट डाटा सेंटर्स, और वो सारे अपने उसके ऊपर काम कर रहे हैं एज if they are working on different memories, but actually it is one data center, which is one mainframe computer, which is providing all this facility. Acha ji, IBM has dominated mainframe computing from this point on. Mainframe computers became powerful enough to support thousands of online remote terminals connected to the centralized mainframe using proprietary communication protocols and proprietary data lines. ठीक है, तो मेन फ्रेम कंप्यूटिंग के अंदर जो बड़ा नाम है वो IBM का है, और ज़्यादा उसी के जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स थे, they were popularized and they were commonly used. The mainframe era was a period of highly centralized computing under the control of professional programmers and system operators. अच्छा जी, इसमें मेन फ्रेम कंप्यूटिंग एरिया के अंदर जो है वो मोस्टली इसके अंदर जो यूजर्स थे वो प्रोफेशनल प्रोग्रामर्स थे और सिस्टम ऑपरेटर्स थे, with most elements of infrastructure provided by a single vendor, the manufacturer of the hardware and software. अच्छा, अब इसमें जो अभी हमने पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर, IT इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, तो डिफरेंट उसके कंपोनेंट्स थे, राइट, जिसमें डाटा मैनेजमेंट सर्विसेज था, फिजिकल मैनेजमेंट सर्विसेज था, ट्रेनिंग का पार्ट था. तो ये सारे के सारे जो है वो एक ही सिंगल वेंडर, जो कि अगर आपने IBM से फॉर एग्जांपल मेन फ्रेम कंप्यूटिंग ये मेन फ्रेम सर्विसेज ली हैं, तो वो सारी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सारी वो ऑल दीज डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज वर प्रोवाइडेड बाय सिंगल वेंडर. अच्छा जी, this pattern began to change with the introduction of mini computers produced by Digital Equipment Corporation in 1965. अच्छा जी, मेन फ्रेम जो था कमर्शियल यूज में 1959 में आया. 1965 में आप इस तरह उसको ध्यान में रखते हैं, हमारी पाकिस्तान की जंग भी 1965 की है, तो 1965 में दो काम हुए. एक ये हो गया कि मेन फ्रेम IBM 360 सीरीज आ गई 1965 में, और दूसरा डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन DEC ने 1965 के अंदर मिनी कंप्यूटर्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवा दिए.
अच्छा जी, ये जो डीईसी मिनी कंप्यूटर्स थे, जिसमें PDP-11 ये उसका मॉडल है, एंड लेटर द वैक्स machines offered powerful machines at far lower prices than IBM mainframes, making possible decentralized computing customized to the specific needs of individual departments or business units rather than time sharing on a single huge mainframe. In recent years, the mini computer has evolved into a mid-range computer or mid-range server and is part of a network. अच्छा, तो मेन फ्रेम कंप्यूटिंग का जो इशू था वो ये था कि इसके अंदर मेनली इट इन्वॉल्व अ ह्यूज कॉस्ट, उसकी कॉस्ट बड़ी ज्यादा थी. सेकेंडली, इट वाज मोस्टली सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग. मेन फ्रेम कंप्यूटर जो आपके हेड ऑफिस में है और वहां पे सारी प्रोसेसिंग हो रही है. और तीसरा उसके अंदर जो था वो इशू जो था वो टाइम शेयरिंग का था. तो जब मिनी कंप्यूटर्स आ गए, तो मिनी कंप्यूटर्स की वजह से आपकी ये तीनों जो इश्यूज थे वो एड्रेस हो गए कि सेंट्रलाइज कंप्यूटिंग के बजाय आप डिसेंट्रलाइज्ड पे चले गए. ठीक है, डिफरेंट डाटा सेंटर्स बन गए और वहां पे आपने डिफरेंट आपके रीजनल ऑफिस में आपने इनको इंस्टॉल कर लिया और आपने इंडिपेंडेंट तरीके से उनको चीज़ों को मैनेज करना शुरू कर दिया. सेकेंडली, जो आपका इशू आ रहा था कि जी उसके अंदर कॉस्ट, तो वो कॉस्ट इसकी कम थी मिनी कंप्यूटर्स की. और तीसरा इशू जो था उसके अंदर वो टाइम शेयरिंग का था, तो वो टाइम शेयरिंग वाला इशू भी इसमें डिसेंट्रलाइज कंप्यूटिंग की वजह से वो भी खत्म हो गया. So these were the first major, you can say, milestones, major changes or major developments, you can say, जो कि achieve हुई in IT infrastructure, mainframe computer and mini computing era, which basically started in 1959, and still both of these mainframe and mini computers are used by large corporations, and they are pretty much in use nowadays as well. So let's move on to the second era. The second era is personal computing era. PCs का जमाना आ गया 1981 to present. अच्छा जी, although the first truly personal computers appeared in 1970s, the Xerox Alto, the MITS Altair 8800 and the Apple 1 and 2 to name a few. ठीक है, तो ये पर्सनल कंप्यूटर्स 1970s के अंदर जो तीन बड़े आप कह लें इसमें नाम हमें नजर आ रहे हैं, जीरोक्स का था, एमआईटी का, ऑल्टेयर था और एप्पल, ये तीन नाम थे. दिस मशीन हैड ओनली लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन टू कंप्यूटर एंथुजियास्ट. तो ये पर्सनल कंप्यूटर्स तो आ गए, लेकिन ये इतने पॉपुलर नहीं थे. दे वर मोस्टली यूज्ड बाय द कंप्यूटर एंथुजियास्ट, या जो लोग कंप्यूटर के साथ जो है दे वर वेल वर्स्ड विद कंप्यूटिंग, तो वो लोग इसको यूज कर रहे थे. The appearance of the IBM PC in 1981 is usually considered the beginning of the PC era because this machine was the first to be widely adopted by American businesses. अच्छा, अब हमने जो PC era जो है 1981, why we are considering 1981 to be important, because this was the time when IBM, they started uh, their personal computers were widely accepted, adopted by American businesses. ठीक है, तो ये इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री हो गई. एट फर्स्ट यूजिंग द डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस जिसको हम कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, अ टेक्स्ट बेस्ड कमांड लैंग्वेज, एंड लेटर द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, द विंटेल कंप्यूटर. अच्छा, ये जो विंटेल है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स. वन इज विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और टेल इज फॉर इंटेल माइक्रो प्रोसेसर. तो विंटेल, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विद इंटेल माइक्रो प्रोसेसर. It became the standard desktop personal computer. Today, 95% of the world's estimated 1.5 billion computer use the Wintel standards. ठीक है, तो ये Wintel इतना पॉपुलर हुआ कि 95% इसने मार्केट कैप्चर कर ली as far as the desktop computers are concerned. Proliferation of PCs in the 1980s and early 90s launched a spat of personal desktop productivity software tools, word processor, spreadsheet, electronic presentations, software and small data management programs. ठीक है जी, ये सारे वो हैं जो हम बहुत कॉमनली यूज कर रहे हैं हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर. स्टूडेंट्स, वर्ड प्रोसेसर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बहुत पॉपुलर है. स्प्रेडशीट्स के अंदर एक्सेल, और इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में पावर पॉइंट आ गया. स्मॉल डाटा मैनेजमेंट प्रोग्राम्स जैसे कि इसमें माइक्रोसॉफ्ट का जो है वो इसमें जो है वो उनका, और छोटे जो आपके पास जो है
डेटाबेस वाले विजुअल स्टूडियो, विजुअल बेसिक, इस तरह के जो है वीबी आ गया, प्रोग्रामिंग आ गई, और सो डाटा में जो है आपके पास डिफरेंट जो है सॉफ्टवेयर आ गए that were very valuable to both home and corporate users. These PCs were standalone systems until PC operating system software in 1990s made it possible to link into networks. अच्छा जी, तो जब ये पर्सनल कंप्यूटर्स आए तो दे वर स्टैंड अलोन, ठीक है, आप अपने पर्सनल यूज के लिए लेकर आ रहे थे। लेकिन फिर बाद में जब नेटवर्किंग डेवलपमेंट्स हो गई तो फिर इट बिकेम पॉसिबल टू मेक अ नेटवर्क ऑफ डिफरेंट पर्सनल कंप्यूटर्स। तो वो एक और इसमें डेवलपमेंट आ गई जो कि which led to the third era of IT infrastructure, which is discussed in the next slide. This is client server era 1983 to present. अच्छा जी, ये कॉन्सेप्ट क्लाइंट सर्वर ईरा का क्या कॉन्सेप्ट है? इन क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग, डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर्स कॉल्ड क्लाइंट्स are networked to powerful server computers that provide the client computers with a variety of services and capabilities. Computer processing work is split between these two types of machines. अच्छा, अब इसमें क्लाइंट सर्वर का कॉन्सेप्ट ये था कि जी आपको you can have a server with a powerful processing and data management capabilities, and then you can have servers which are linked to that. Then you can have clients which are linked to that server. वो clients जो हैं वो computers, वो desktop computers हैं, but they are relatively their processing capability is low, their data storage capacity is low, but since they are linked to a server, तो वो अपनी जो भी उसकी deficiencies हैं वो वहां से पूरी कर लेते हैं। तो ये इसका क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग का एडवांटेज ये है कि इट इज अ कॉस्ट इफेक्टिव मैकेनिज्म, कि आपको सारे पावरफुल कंप्यूटर्स नहीं चाहिए, आपको एक सर्वर चाहिए जो पावरफुल होना चाहिए, बाकी आप उसके साथ क्लाइंट्स जो हैं यू कैन हैव cost effective clients which can be linked with that server. The client is the user point of entry, whereas the server typically processes and stores shared data, serves up web pages और मैनेज नेटवर्क एक्टिविटीज। ठीक है, तो आपके जो क्लाइंट्स हैं वो डाटा एंट्री के लिए मोस्टली यूज हो रहे हैं, डाटा को एक्सेस करने के लिए यूज हो रहे हैं, लेकिन जो आपका सर्वर है वो सारे काम बैक एंड पे कर रहा है, जैसे कि उस डाटा की प्रोसेसिंग है, डाटा की स्टोरेज है, वेब पेजेस की जो उसमें जो भी मेंटेनेंस है वो वहां पे हो रही है, और जितनी भी आपकी नेटवर्क की एक्टिविटीज हैं वो सारी सर्वर के थ्रू मैनेज हो रही हैं। The term server refers to both the software application and the physical computer on which the network runs software. The server could be a mainframe, but today server computers typically are more powerful versions of personal computers based on inexpensive chips and often use multiple processor in a single computer box. तो जो ये बेसिकली वो पुराना मॉडल है, उसमें ये था कि जो मेन फ्रेम होता था उसके साथ आप डिफरेंट क्लाइंट्स लिंक करते थे, फिर उसके बाद आपके पास जो है मिनी कंप्यूटर्स आ गए, तो मिनी कंप्यूटर्स के साथ आपने डिफरेंट क्लाइंट्स लिंक करना शुरू कर दिए। फिर उससे भी ये आप कह लेंगे थर्ड मोस्ट इकोनॉमिकल हो गया। पहला जो था मेन फ्रेम वॉज कॉस्टली, मिनी कंप्यूटर्स वर कंपेरेटिवली लेस कॉस्टली देन मेन फ्रेम, और जो पर्सनल कंप्यूटर्स थे दे वर इवन लेस कॉस्टली देन मिनी कंप्यूटर्स। तो एक इसके पीछे जो मोटिवेशन था फॉर द बिजनेसेस टू यूज दिस क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, इट वाज द कॉस्ट, the cost was minimum in this form. The simplest client server network consists of a client computer networked to a server computer with processing split between the two types of machines. This is called a two-tiered client server architecture. ठीक है कि आपके पास क्लाइंट कंप्यूटर जो है वो सर्वर के साथ लिंक हुए हुए हैं, और वहां पे आप उनकी जो प्रोसेसिंग है वो इन दोनों के बीच में स्प्लिट हो रही है। Whereas simple client server networks can be found in small businesses, most corporations have more complex, multi-tiered, often called N-tier client server architectures, in which the entire network is balanced over several different levels of servers depending on the kind of service being requested. अच्छा जी, ये तो थोड़ा सा डिफरेंस आप इसके समझ लें कि जो है टू टीयर में क्या है, एक सर्वर है और उसके साथ डिफरेंट क्लाइंट्स हैं, जबकि मल्टी टीयर्ड के अंदर मोर देन वन सर्वर है।
ठीक है, एन सर्वर्स हैं, एक से ज्यादा सर्वर्स हैं और एक से ज्यादा क्लाइंट्स हैं, तो इसलिए वो जो एक से ज्यादा सर्वर होने का फायदा ये है कि आपका जो नेटवर्क है वो डिफरेंट सर्वर्स के ऊपर बैलेंसली रन कर रहा है और डिफरेंट सर्विसेज जो है वो डिफरेंट सर्वर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपकी जो है वो लोड जो है एक सर्वर पे नहीं है बल्कि वो डिफरेंट सर्वर्स पे डिवाइड हो रहे हैं। तो ये जो है ज्यादा एडवांस्ड आप कह लें जो आजकल कॉन्सेप्ट है वो मल्टी टीयर्ड जो है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को फॉलो किया जा रहा है, एनटीआर जिसको हम बोलते हैं। चलें जी, लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ client server, fourth era of IT infrastructure. Okay, now still we have some points related to client server. जो हमने अभी मल्टी टीयर की बात की तो उसकी एग्जांपल है कि फॉर इंस्टेंस एट द फर्स्ट लेवल अ वेब सर्वर विल सर्व अ वेब पेज टू अ क्लाइंट इन रिस्पांस टू अ रिक्वेस्ट फॉर सर्विस. Web server software is responsible for locating and managing stored web pages. If the client requests access to a corporate system, a product list of price information, for instance, the request is passed along to an application server. Application server software handles all application operations between a user and an organization's backend business systems. The application server may reside on the same computer as the web server or its own dedicated computer. अब ये देखें ये मल्टी जो है वो टीयर आर्किटेक्चर की एग्जांपल है कि यहाँ पे आपके पास दो सर्वर एट अ टाइम काम कर रहे हैं। एक आपके पास वेब सर्वर है जो कि आपकी वेब की जितनी रिक्वेस्ट हैं उसको हैंडल करता है, एंड देन यू हैव एप्लीकेशन सर्वर। तो एप्लीकेशन सर्वर सॉफ्टवेयर जो है वो जितने भी आपकी एप्लीकेशन हैं बिटवीन द यूजर एंड ऑर्गेनाइजेशन वो उसको हैंडल करता है। तो दिस इज वन एग्जांपल गिवन हियर ऑफ मल्टी टीयर client server architecture. More than one server is used in that type of architecture. Actually, client server computing enables businesses to distribute computing work across a series of smaller, inexpensive machines that cost much less than mini computers or centralized mainframe systems. The result is an explosion in computing power and applications throughout the firm. Novell NetWare was the leading technology for client-server networking at the beginning of the client-server era. Today, Microsoft is the market leader with its Windows operating system, Windows Server, Windows 7, Windows Vista, and Windows XP. ठीक है, तो क्लाइंट सर्वर के अंदर जो है जैसे मैंने पहले भी बता दिया कि ये इसलिए बिजनेस को सूट करता है कि ये लेस कॉस्टली है, और इसके अंदर जो दो बड़े नाम हमें नजर आते हैं, वन इज नोवेल नेटवेयर जिसने ये क्लाइंट सर्वर में अपना नाम पैदा किया, और दूसरा आपको एज यूजुअल सॉफ्टवेयर के अंदर जो मार्केट लीडर माइक्रोसॉफ्ट है, तो यहाँ पे भी आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं वो इसमें डोमिनेट करते हुए नजर आते हैं। ओके जी, द fourth era of IT infrastructure that is enterprise computing era, and it started in 1992 and still it is pretty much dominant in the market. In the early 1990s, firms turned to networking standards and software tools that could integrate disparate networks and applications throughout the firm into an enterprise-wide infrastructure. अच्छा जी, जो जैसे जैसे बिजनेसेस जो है ग्रो करते गए, अब उसमें दो तरह की ग्रोथ थी। एक ऑर्गेनिक ग्रोथ थी कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका बिजनेस बढ़ता जा रहा है, क्लाइंट्स बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, तो उस लिहाज से आप ग्रो कर रहे हैं। और एक ये था कि उसमें आपके पास सीरीज ऑफ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस भी आना शुरू हो गई। तो अब जब ये दोनों जो दोनों तरह की डेवलपमेंट थी, उसमें एक चैलेंज बिजनेसेस के सामने वो आया कि जी किस तरीके से अपने डाटा को, अपने जो आपका पहले इंक्रीज्ड सर्कल ऑफ एक्टिविटी है, हाउ टू मैनेज इट, हाउ द डाटा एंड हाउ द integration of data can be done. So that was one of the challenge which was faced. तो उसको एड्रेस करने के लिए फिर हमारे सामने ये एंटरप्राइज सिस्टम्स आ गए कि उन्होंने ये करना शुरू कर दिया कि बजाय आप ये डिफरेंट किस्म के रंग बिरंगे सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, रंग बिरंगे सिस्टम रन कर रहे हैं, आप उसकी बजाय एक ही सॉफ्टवेयर यूज करें विच इज
available throughout the enterprise. As the internet developed into a trusted communications environment after 1995, business firms began seriously using transmission control protocol, internet protocol, जिसको हम TCP IP networking standard कहते हैं. This TCP IP networking standard is used to tie disparate means different networks together. अच्छा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है, ये प्रोटोकॉल यूज होता है फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डाटा ओवर द इंटरनेट. तो टीसीपी आईपी ये इसको सिक्योर करता है आपकी ट्रांस कम्युनिकेशन को, कि आपकी कम्युनिकेशन जो है, जो आपने इट इज नॉट इट इज रीचिंग द इंटेंडेड डेस्टिनेशन, जहां आपने भेजा वहीं पहुंच रहा है, और नो अनऑथराइज्ड एक्सेस इज मेड टू दैट कम्युनिकेशन. तो उसको इस दो पर्पजेस के लिए हमारे पास टीसीपी इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज होता है. The resulting IT infrastructure links different pieces of computer hardware and smaller networks into an enterprise-wide network so that information can flow freely across the organization and between the firm and other organizations. It can link different types of computer hardware, including mainframes, servers, PCs, mobile phones, and other handheld devices, and it includes public infrastructures such as the telephone system, the internet, and public network systems. अच्छा जी, तो ये जो एंटरप्राइज सिस्टम्स हैं, ये आपके सारे के सारे जितने भी आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के हिसाब से या कंप्यूटर के हिसाब से जितने आपकी डिवाइसेस रन हो रही हैं, जितनी भी उसकी आपस में जो कम्युनिकेशन है, वो सारी एक ही सिस्टम पे आ जाती है, एंड दैट इज दिस एंटरप्राइज सिस्टम. The enterprise infrastructure also requires software to link disparate applications and enable data to flow freely among different parts of the business, such as enterprise application and web services. अच्छा, अब आप डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट एप्लीकेशंस रन कर रहे हो, डिफरेंट, जैसे मैंने कहा कि मर्जर्स और एक्विजिशन हो गया, तो जब आपने दो फर्म्स को मर्ज कर दिया, बोथ माइट बी रनिंग अ डिफरेंट सॉफ्टवेयर. तो उस सूरत में फिर आपके लिए इशू आएगा कि जी टू कम्युनिकेट बिटवीन द टू डिफरेंट सिस्टम्स. तो उस इशू को इस एंटरप्राइज सिस्टम ने जो एड्रेस कर दिया कि इसने डिफरेंट आपके सॉफ्टवेयर्स थे उनको आपस में, बजाय आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज करें, वन सॉफ्टवेयर इज अवेलेबल and everyone can access and everyone can use it for processing of the data, for storage of the data, for uh, addressing different queries. For so one data set is there which is updated all the time. कहीं भी आप data को update करते हैं, तो that is updated in the central database, and whoever wants to access the data, he's accessing it from the central database. तो उस वजह से you get updated data all the time. So these are few advantages of this enterprise computing era कि जी आपका सारा जो जितना भी आपका network है, that is linked together, all your units are linked together, there is only one set of data available, single set or common set of data available, with whatever updation is made उसी data set के अंदर आप जो है वो आपकी addition हो रही होती है. If you want to track changes, वो आप track कर सकते हैं कि जी कहाँ से change हुई है. और इसका एक फायदा ये भी कि whenever you want to access the data from, for example, sales and marketing team wants to access the data, so they will be getting the same data as it is appearing in the data for finance and accounting. ऐसा नहीं है कि फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में कोई डाटा अपडेट हुई और वो सेल्स एंड मार्केटिंग वालों को नहीं पता, या सेल्स एंड मार्केटिंग वालों ने कोई सेल्स अपडेट की है और वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास वो अपडेट नहीं है, बल्कि चूंकि एक ही सिंगल डाटा सेट है, तो जहां भी जो चेंज होगी वो सबको विजिबल होगी. Okay, so we reach to the final era that we want to discuss in this uh, development of IT infrastructure. It is cloud and mobile computing era, which basically started in 2000 and it is still going on at a very fast speed. Now, the growing bandwidth, excuse me, the growing bandwidth power of the internet has pushed the client-server model one step further towards what is called the cloud computing model. Okay, so
Cloud computing refers to a model of computing that provides access to a shared pool of computing resources, computer storage application and services over a network of often the internet. अच्छा जी, क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल में आपके पास everything is available on internet. So if you want to use any of the computer resource, if you want to access any of the computer resource such as कंप्यूटर स्टोरेज एप्लीकेशन सर्विस, ये सारी चीजें आपको अवेलेबल हैं ओवर द नेटवर्क ओवर द इंटरनेट that you can access these things. These clouds of computing resources can be accessed on as needed basis from any connected device and location. Currently, cloud computing is the fastest growing form of computing, with global revenue expected to reach to close $89 billion dollars in 2011 and nearly $149 billion dollars by 2014, according to Gartner Incorporation Technology Consultants. अच्छा जी, cloud computing is very popular. One example of cloud computing is your Gmail account. So, as you can see, Gmail is independent of the device you are using. You can access it on your smartphone, you can access it from your laptop or from your desktop. कहीं से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं. रीजन बीइंग कि वो जो आपका जीमेल का डाटा है वो आपके डिवाइस पे स्टोर्ड नहीं है. इट इज स्टोर्ड ऑन द क्लाउड. ठीक है, वो बैक एंड पे किसी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के पास स्टोर्ड है जो आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. तो जब आप उस डाटा को एक्सेस करते हैं तो वो आप इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर रहे होते हैं और वो एक्सेस आप उस क्लाउड सर्विस सर्वर प्रोवाइडर की फैसिलिटी से एक्सेस कर रहे होते हैं, नॉट फ्रॉम यू आर नॉट एक्सेसिंग इट फ्रॉम योर डिवाइस. ठीक है, तो ये एक आपको उसका आइडिया मिल गया कि किस तरीके से क्लाउड कंप्यूटिंग काम करती है. और क्लाउड कंप्यूटिंग का एडवांटेज ये भी है कि इसके अंदर आपके पास यू कैन यू हैव द फ्लेक्सिबिलिटी. ठीक है, कि जिसको हम इलास्टिसिटी बोलते हैं. इलास्टिसिटी जैसे इलास्टिक को आप खींचना चाहें, जितना आप खींचना चाहें उसको आप स्ट्रेच कर सकते हैं. तो सिमिलरली क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर भी देयर इज दिस इलास्टिसिटी अवेलेबल कि जी अगर आपको आपने एक सर्विस ली है जिसमें आप कहते हैं कि जी हमारे पास 1 GB की हमें स्टोरेज चाहिए, लेकिन थोड़े अरसे बाद आपको रियलाइज होता है कि जी हमें वी नीड 10 GB. तो आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं रिक्वेस्ट उसके लिए. और फिर अगर आपको 100 GB चाहिए तो 100 GB पे चले जाएंगे. 1 TB चाहिए तो 1 TB हो सकती है. तो जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है वो क्लाइंट सर्वर प्रोवाइडर जो है वो आपको आपकी उस रिक्वायरमेंट को उस हिसाब से इंक्रीज करता चला जाता है. द फॉर्मूला दैट अप्लाइज इन क्लाउड कंप्यूटिंग इज द मोर यू पे द मोर यू गेट. ठीक है, जितना आप इट इज पेड सर्विस एक्सक्यूज मी, इट इज अ पेड सर्विस. तो आपको जितनी भी अपनी सर्विसेज जितना आपको यूज करना है उतना उस हिसाब से आप उसकी पेमेंट करते जाएंगे. Thousands or even hundreds of thousands computers are located in cloud data centers where they can be accessed by desktop computers, laptop computers, netbooks, entertainment centers, mobile devices, and other client machines linked to the internet, with both personal and corporate computing increasingly moving to mobile platforms. अच्छा, अब जैसे एक जो ट्रेंड हमें नजर आ रहा है वो है शिफ्ट फ्रॉम डेस्कटॉप टू मोबाइल टेक्नोलॉजीज, मोबाइल डिवाइसेस. तो the sales of mobile devices is now much higher compared to the sales of desktops. So आप कॉमन देख लें कि जी कंप्यूटर कितने लोगों के घर में है और स्मार्टफोन्स कितने लोगों के पास है. तो एवरी सेकंड और थर्ड पर्सन हैज अ स्मार्टफोन, जबकि डेस्कटॉप में ऐसा नहीं है. डेस्कटॉप जो है कम लोगों के पास है. तो इसलिए अब जो जितने भी कंप्यूटर इंडस्ट्री है वो इसको फोकस कर रही है कि ये जो मोबाइल डिवाइसेस हैं आपकी, स्पेशली जो स्मार्टफोन्स हैं, इनको किस तरीके से यू नो बिजनेस पर्पस के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया जाए. तो इसलिए अब आप देखें कि एप्स आना शुरू हो गई हैं. हर चीज की ऐप आपको मिल जाती है. अपनी बैंकिंग करनी है उसके लिए ऐप डाउनलोड कर लें. किसी भी बड़े बिजनेस के साथ आपने डील करना है उसके लिए उनकी ऐप डेवलप हुई हुई है. उससे आप उसको अपने मोबाइल फोन पे एक्सेस कर सकते हैं, स्मार्टफोन पे, और डाउनलोड कर सकते हैं. उससे आप सारी ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं. अपनी जो भी आपकी इंफॉर्मेशन शेयरिंग है वो सारी आप उस पर कर सकते हैं.
IBM, HP, Dell, and Amazon operate huge, scalable cloud computing centers that provide computing power, data storage, and high speed internet connections to firms that want to maintain their IT infrastructures remotely. अब इसमें जो बड़े नाम आ रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर, वो IBM एज यूजुअल, कोई भी बिजनेस टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज आती है तो उसमें IBM इज ऑलवेज देयर, HP, डेल एंड amazon, ये सारे वो नाम है जो वी आर फेमिलियर विद दीज, ऑल ऑफ दीज नेम्स। तो ये वो सारे हैं जो इस वक्त क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, और ये जो है वो कंप्यूटिंग पावर के लिए लोग इनको इनसे जो है वो सर्विस सर्विस यूज करते हैं, डाटा स्टोरेज के लिए इनकी सर्विसेज यूज कर रहे हैं, और इंटरनेट कनेक्शंस के लिए इनसे सर्विसेज ले रहे हैं। Software firms such as Google, Microsoft, SAP, Oracle, and Salesforce.com sell software application as services delivered over the internet. तो जो है इंटरनेट के ऊपर प्लेटफॉर्म भी अवेलेबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अवेलेबल है थ्रू क्लाउड, और सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है थ्रू क्लाउड। तो जो सॉफ्टवेयर में बड़े नाम है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट इज अ बिग जॉइंट, इज अ जाइंट, माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर जाइंट, तो यहाँ भी वो नजर आ रहा है। गूगल बहुत बड़ा नाम है सॉफ्टवेयर के अंदर। सैप, ये जो एंटरप्राइज सिस्टम्स हैं उसमें सैप और ओरेकल दो बड़े नाम हैं। Salesforce.com जो है वो कस्टमर रिलेशनशिप, रादर जो आपकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जो टूल्स हैं वो इसमें सॉफ्टवेयर वो डेवलप करते हैं, और वो आप सर वो सॉफ्टवेयर आप क्लाउड के थ्रू यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो आपको जो ट्रेंड्स हैं, दे आर now very much dominant as far as the IT infrastructure is concerned. Cloud and mobile computing era, which is now still we are facing, and it is increasing day by day. Okay, so with this we come to the conclusion of today's lecture. Today's lecture was mostly, in this lecture we covered two things. One was the different components of IT infrastructure. Part one, we covered the different components of IT infrastructure, and part two of today's lecture covered the 5 eras of IT infrastructure. So the development of IT infrastructure is divided into these 5 eras. So I hope the things are clear. If you have any query, if anything is not clear in your mind, so you can email me, or you can put your question on the Google Classroom, or even you can send me through WhatsApp, and I'll try to answer your queries. So thank you very much. So we say goodbye for the day. See you in the next lecture. Allah Hafiz.